audible? Yes, it's perfect. Yes, you can start now. Okay, so let's start with praying in tongues for some time and then we'll start the class. Yes. Okay. Hallelujah. 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 Tala kala kala para shikili tala tala bhare bhari 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 kala tala Lord, mamala shikili tala hallelujah, bara Lord. bhari kala Thank you, tala kala tala Jesus. kala kala Thank you, kala Jesus. tala kala kala tala pari shikili mamala kala It tala is kala the kala shikili mamala kala kala shikili tala kala tala decision kala that kala 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 the Kala I mana kala tala kala tala kala tala kala 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 shri hara 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 hare Kala fala 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 kala tari 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 kala tala kala Jete kala to kala kala Jete kala Kiki kala kala Hari tari Kikin de Tre. kala I mala kala tari kala kala fala shri hara 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 kala Jete kala Tre. hari 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 Hallelujah, 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 Jete kala 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 shri hara 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 mala kala kala Jete shri kala kala I Jete kala bala Triplicating. bala 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 bala. Thank you, Yes, Jesus, for yes, your yes, yes, anointing. yes, Thank yes, you, yes, Lord. yes, God, yes. you. Kala 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 Yeshua, kala kala Yeshua, shri kala tare kala tare kala tala kala shri hara 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 mamala kala tare 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 kala tare 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 kala tare 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 Yeshua, kala kala. Yeshua. Holy Yes, hari yes, hari hari yes, hari yes, hari. Replica, ten, Replica, Kishi, Tetribu. Aye, Kala kala kala. Tetrish, Taking, Kiki, Tetrish, Testre. Jetes, Replica, Tetriplica, Kishi, Kala 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 kala. Shishi, Oh, bara bari bari shikiri tare 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 kala tala bari. Ola Tetrish. fala fala shikiri dara bara wala la kala kala shikira mana kala kala tare tare kala 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 shara fala 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 Yeshua, 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 Yeshua. Pala 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 tari 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 kala kala tari 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 tara kala tara hari 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 Yes, hari hari yes, yes, holy bala yes, bala 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 yes, kala yes, kala tari yes, tari tari yes, kala yes, yes, yes. tara para. Again, Thank you, Jesus. Thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Lord, Praise I you. just want to thank and praise you, Lord Jesus, that you are here. Your very presence is in our midst, O Lord God. Just as you were with your disciples, Lord Jesus, you are here and you are teaching us the truths of your kingdom. आप हमें हम आपका राज्य का सीक्रेट्स बता रहे हैं प्रभु प्रभु आपके बिना हम कुछ जान नहीं सकते हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें विजडम दिया है नॉलेज दिया है अंडरस्टैंडिंग दिया है और हम आपका धन्यवाद पहले से ही देते हैं प्रभु यीशु कि आपने ऑलरेडी हमें नॉलेज दे दिया है कि आप हमें क्या पढ़ाने वाले हैं आज क्लास में प्रभु प्रभु जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं जो हमें सिस्टर फ्लोरिटा ने सिखाया है प्रभु आप हमें और भी गहरा सीक्रेट सिखा रहे हैं ये हमें पूरी तरह से एश्योरेंस है प्रभु यीशु आप हमारे साथ है और जब आप हमारे साथ है हमें पूरा विश्वास है और फियर को हमारे बीच में कोई भी जगह नहीं है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु Amen. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जुबा को हमारे वोकल कॉर्ड्स को कंप्लीटली कंट्रोल किया है एनॉइंट किया है प्रभु आप हमारे द्वारा बोलने वाले हैं प्रभु हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है प्रभु और एवरीथिंग सब कुछ तुम्हारा है प्रभु आप हमें यूज करो हर एक जन से बात करने के लिए हमसे बात करने के लिए प्रभु जहाँ पे हम बढ़ना चाहते हैं प्रभु आप हमें विजय बुलाते हैं प्रभु और वही हम आप अपने आप को बुलाते हैं हम विजयित है हम ऑलवेज विक्टोरियस है प्रभु क्योंकि आप हमारे साथ है आप हमारे लिए है और आप हमारे अंदर है प्रभु ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं Amen. Amen. Thank you, So Jesus. praise the Lord everybody. Praise the Lord, sister. So आज हम जो सीखने जाने वाले हैं जो हम सीखने वाले हैं वो है जो सिस्टर फ्लोरिटा ने हमें सिखाया था होली स्पिरिट के द्वारा नोइंग योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट आप प्रभु यीशु में आपका पहचान क्या है वो हम आज रिवाइज करने वाले हैं ओके Okay, sister.
तो हमने जो सीखा है सिस्टर डायना कि क्यों जानना जरूरी है कि हमारा आइडेंटिटी क्या है. Why is it necessary to know our identity? Why is it necessary? Yes. Because जैसे हर एक जब मतलब एक बच्चा पैदा होता है या हम जब बड़े होते हैं, अगर हमारी पहचान नहीं है तो मतलब अगर हम हमारी खुद की पहचान नहीं है तो हम जैसे मतलब खोए हुए हैं ना। अगर मुझे पता ही Yes. नहीं है कि मेरा आइडेंटिटी क्या है, जैसे जब हम इंडिया में होते हैं तो हमारा जो आधार कार्ड है या रेशन Yes. कार्ड है या वो हमारा आइडेंटिटी होता है। जब हम Yes. जो भी देश में हम रहते हैं, अगर वो आइडेंटिटी ही नहीं है तो यानी हम ही नहीं है ना। Yes. So identity हमें security देता है. Identity हमें confidence देता है कि हम क्या है. वैसे ही हमें confidence मिलता है जब हम जानते हैं हमारा पहचान क्या है प्रभु यीशु में इस दुनिया में. It is very very important to know who we are in Christ in this world. Okay. So sister Manju, praise the Lord, sister. Sister Priyanka, praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. तो हम ये जानने वाले, आज हम वही रिवाइज करने वाले हैं कि हम प्रभु यीशु में कौन है. ओके. जब हम प्रभु यीशु में आने से पहले हमारा स्थिति वैसे ही था जैसे वो इंसान का होता है जिसने अपनी याददाश्त खो दी थी. ओके. एक इंसान जो फुल फ्लेज इंसान है, ओके, फुल फ्लेज, फुल कॉन्शियसनेस में है, वो फुल जानता है अपने बारे में, और सडनली ऐसा एक टाइम आता है जहाँ पे उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरी तरह से भूल जाता है कि वो कौन है. और जब वो भूल जाता है तब उसमें आता है डर, तब उसमें आता है चिंता, तब उसमें आता है दर्द. ओके. तो ये हमारे साथ हुआ था जब हम प्रभु यीशु में आने से पहले. ओके. हम इस दुनिया में थे और हम पूरी तरह से भूल गए थे हम कौन हैं, और तब आया हमारे लाइफ में डर, चिंता और फियर एंड वरी और हर काइंड ऑफ इविल. ओके. अब जब हम सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा हमारा आइडेंटिटी क्या है. ओके. आइडेंटिटी हमें देता है सिक्योरिटी, आइडेंटिटी हमें देता है कॉन्फिडेंस. ओके. आइडेंटिटी हमें वो कॉन्फिडेंस देता है कि अब चाहे पूरा दुनिया हमारे अगेंस्ट हो, पर हम जानते हैं हम कौन है, और इसलिए हम विश्वास के द्वारा में हम खड़े होते हैं. ओके सिस्टर. सिस्टर डायना. यस सिस्टर, सॉरी. नो प्रॉब्लम. सो इन आर, हम कौन है सिस्टर डायना? हम प्रभु के बच्चे हैं. ओके. बट आर वी ह्यूमन बीइंग्स? हाँ, यस. Are we human beings? We are spirit beings. Okay. तो हम स्पिरिट बीइंग्स. हाँ, सही है. जब हमारा जन्म, when we are born again in Jesus, okay, when we are born again, हम अब human being नहीं रहे, हम spirit beings हैं. हम spirit beings हैं, हम रहते हैं, हमारे पास soul है और हम रहते हैं शरीर में. Okay, so we are spirit beings. Okay, so जब हम spirit beings रहते हैं, तब जब spirit beings होते हैं वो emotion से काम नहीं करते हैं,
माइंड से काम नहीं करते हैं, अपने अपने इंद्रियों से काम नहीं करते, अपने सेंसेस से काम नहीं करते। स्पिरिट बीइंग्स काम करते हैं ओनली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, जो वचन कहता है वो वैसे हम अपनी लाइफ में काम करते हैं। जो वचन हमारे बारे में कहता है वैसे ही हम बोलते हैं, वैसे ही सोचते हैं और वैसे ही अपनी लाइफ में कार्य करते हैं। ओके 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 सिस्टर। सो एज जैसे हम स्पिरिट बीइंग्स है और हम जानते हैं सिस्टर डायना कि हम प्रभु के बच्चे हैं, वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। हम तो जब हम जानते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमारा कुछ एंटाइटलमेंट्स होता है। ओके, हमारा कुछ विरासत होता है, हमारा कुछ बेनिफिट्स होता है, हमारा कुछ ड्यूटीज होता है जो हमें करना है। ओके, ऑलराइट, सो let's go to 2 Corinthians 5:17. Okay. So you are going to put it on the screen. Yeah, I'll just open it up and then I'll share screen, okay? Okay. Yes, sister. Can you see? Yes. Sister Manju? Yes, sister. सिस्टर आप पढ़ोगे हिंदी में? पढ़ो। यस। हाँ 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 पढ़ेगा। इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है। पुरानी बातें जाती रही है, सब कुछ नया हो गया है। ओके, सो ये वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है, तो क्या हम मसीह में स्थित हैं? Are we in Christ? Yes. Do we have the full confidence that in this world we are in Christ? Yes. Okay. तो अब जब हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में प्रभु यीशु में हैं, तब ये आगे का वचन हमारे लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है। So we are a new creation. Okay, this speaks so beautifully कि we are a body of Christ. We are a new creation. Okay, अब जब हम नए creation, जब हम नए सृष्टि बन गए हैं, okay, इसका मतलब ये है कि जो पुराना है, हम पूरी तरह से नए बन गए हैं। अभी इसके आगे भी कुछ बोलता है, पुरानी बातें जाती रही है, सब कुछ नया हो गया है। सो इट सेज कि हमारा जो पुराना चला गया है और हम पूरी तरह से नए बन गए। तो ये जो नए हम बन गए हैं, हम किस में बने हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंक अल्कोहलिक है, ओके ओके, और वो ही इज ड्रिंकिंग, ओके, अब वह इंसान जब प्रभु यीशु में आता है, ओके, तो ये वचन कहता है कि वो एक न्यू क्रिएशन है। पर जब वो देखता है अपने लाइफ में, वो स्टिल ही हैज दैट अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। वो स्टिल उसको जैसे दूसरी कोई रॉन्ग आदतें हैं, वो अभी भी वो वही कर रहा है।
ये क्यों ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा क्यों होता है? कैन यू टेल मी? क्योंकि मतलब वो बहुत सालों से उस मतलब वो उसकी जैसे वो हैबिट हो गया है, तो उसको शायद थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, नाउ एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, एक हैन रहता है, एक मुर्गी होती है। ओके, एक मुर्गी के ने अंडे दिए। ओके, और गलती से वो अंडे में एक ईगल का अंडा, एक चील का अंडा आ गया। ओके, ऑलराइट। तो वो ओके। मुर्गी सोचती है कि वो उसका अंडा है। ऑलराइट, और वो मुर्गी बैठती है वो अंडे पे, और वो अंडा कुछ दिनों के बाद हैच होता है, वो अंडा खुल जाता है और मुर्गियां बाहर आती है। तो जब ओके। मुर्गियां बाहर आती है, मुर्गियों के साथ चील भी बाहर आता है। ओके, हाँ। अभी मुर्गियां देख रही है कि उसके आसपास में सब मुर्गे हैं। ओके, तो वो सोचता है कि वो खुद भी मुर्गी है। ओके, हाँ। तो जैसे मुर्गियां जाती है वो उसके जैसा जाता रहता है। जैसे मुर्गियां कुकड़ू कुकू करती है, वो भी कुकड़ू कुकू करने की कोशिश करता है। अब उसके सोच में वो पूरी तरह से वो मुर्गी है, और जैसे वो बढ़ रहा है वो हरकतें भी मुर्गियां जैसे करना चालू करता है। ओके, तो वो अपने आप को पूरी तरह से मुर्गी समझता है। पर एक दिन वो देखता है कि आसमान में एक चील, ईगल को चील ही बोलते, राइट? हाँ। हाँ। एक चील उड़ रहा है। ओके, और वो सोचता है वाओ कितना मस्त है, वो ईगल उड़ रहा है, वो चील उड़ रहा है। तो बाकी सब मुर्गियां उसको बोलती है कि कम ऑन, तुम तो मुर्गी है तो तू उसकी तरफ देख भी मत, तू कभी उसके जैसा बन नहीं सकता। ऑलराइट, तो जब वो सोचता है कि वो उसके जैसा बन नहीं सकता, ओके, पर उसके मन में एक सपना आ जाता है कि उसको चील के जैसे उड़ना है। ओके, तो वो दिन भर उड़ने की कोशिश करता है। तो तब सब जन उस पे हंसने लगते हैं, सब उसकी मजाक उड़ाते हैं कि ये तो मुर्गी है पर ये अपने आप को चील समझता है। ओके, तो उसकी उसकी माँ भी उसको डांटती है, सब जन उसको डांटते हैं और गपचुप बोलते हैं कि तू मुर्गी है, तू मुर्गी ही रहेगा और तू मुर्गी ही मरेगा, तेरे में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, तो खुद को चील मत समझ क्योंकि मुर्गियां कभी उड़ती नहीं है। ऑलराइट, तो वो चील क्या करता है, जब सब रात को सोते हैं ना, तब वो प्रैक्टिस करता है उड़ने की, क्योंकि उसके मन में एक सपना है, उसको बनना है चील की जैसा। ओके, बिकॉज ही इज अ चील, उसका ही इज एन ईगल, वो खुद एक चील है। ओके, हाँ। तो उसके मन में है कि मुझे उसके जैसा बनना है, बिकॉज वो खुद ही वो है। ओके, पर अभी तक वो जानता नहीं है कि वो चील है, वो अभी तक सोच रहा है कि वो एक ईगल है, वो एक मुर्गी हाँ। है। तो वो दिन रात को चुपके से जब सब सोते हैं तभी कोशिश करता है उड़ने को। तो हर रात को कोशिश करते 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 एक दिन वो सीख जाता है उड़ने को। ओके, और वो उड़ने को जब सीख जाता है वो इतनी ऊंची उड़ान लेता है, उसको देख के सब मुर्गी शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ओके, उसी तरह से जब हम परमेश्वर में आए, ओके, पहले हमारी पुरानी लाइफ में सब जन ने हमें कहा कि हम मुर्गी है। ओके, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर अब जस्ट अ मिनट सिस्टर, ओके, बट अब जब हमारा नया जन्म हुआ है, ओके, हमारे स्पिरिट में हमारा पूरी तरह से चेंज हुआ है। ऑलराइट, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, व्हेन इट सेज हम नए सृष्टि है, हम हमारी स्पिरिट में, हमारी आत्मा में नई सृष्टि है। ओके, बट हमारी फिजिकल जो बॉडी है वो यूज टू है मुर्गी के जैसे जीने के लिए, वो यूज टू है कि जैसे मुर्गियां काम करती है वैसे करने के लिए। तो अब हमें हमारी माइंड को ट्रेन करना है कि माइंड, तू मुर्गी नहीं है,
तू ईगल है, यू आर एन ईगल, बिकॉज हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और इसलिए हम ईगल हैं, हम मुर्गी नहीं है। और ये जो नॉलेज है हमारी आइडेंटिटी इन क्राइस्ट में, वो हमें कहाँ से मिलेगा? प्रभु के वचन से। यस एग्जैक्टली, वो हमें मिलेगा प्रभु के वचन से। जब मैंने मेरा जब नया जन्म हुआ था प्रभु यीशु में, ओके, मेरी पुरानी लाइफ वॉज अ वेरी हैप्पी, मतलब बहुत रेकलेस लाइफ था। ओके, सब बुरी बातें, सब बुरी चीजें करने का। ओके, मेरे थॉट्स, मेरे स्पीच, मेरी एक्शन वॉज ऑल फिल्थी। ओके, बट जब मैं प्रभु यीशु ने मुझे छुआ, जब मेरी लाइफ चेंज हो गई, अब क्या हुआ कि फिजिक्स एंड स्पिरिट मैं चेंज हो गई हूँ, बट मेरे माइंड में वो जो पुराने वे ऑफ थिंकिंग, द डर्टी थिंकिंग, द डर्टी लिविंग, वो बार बार आ रहा था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मेरा करना, आई एम अ रॉन्ग पर्सन। आई यूज्ड टू, मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि मेरा लाइफ ऐसा है कि मैंने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। और तब मुझे ये सोच नहीं पता थी, तब मुझे ये नहीं पता था कि ये जो सोच आ रहा है वो मेरी सोच नहीं है, दैट इज द ओल्ड लाइफस्टाइल। बट अब जब मेरे पास प्रभु का वचन है, अब मैं जानती हूँ कि प्रभु का वचन मुझे क्या बुलाता है। प्रभु का वचन मुझे बुलाता है राइचियस नॉट बिकॉज मेरे काम की वजह से, बिकॉज ऑफ जीसस के काम के वजह से मैं राइचियस बन गई हूँ, ऑलरेडी बन गई हूँ। इवन दो मेरा एक्शंस बताता नहीं है कि मैं राइचियस हूँ, बट मैं अपने माइंड को बोलती हूँ, हे माइंड, इवन अगर मेरा एक्शंस नहीं बता रहा है कि मैं राइचियस हूँ, मैं अपने सेंसेस को नहीं फॉलो करती हूँ, मैं अपने इंद्रियों को नहीं फॉलो करती हूँ, मैं यही फॉलो करती हूँ जो प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन मुझे बुलाता है, मैं राइचियस हूँ। और क्यों राइचियस हूँ? क्योंकि अब मैं एक न्यू क्रिएशन हूँ। मैं प्रभु का शरीर हूँ। आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सो अब हमें वो वचन ढूंढना है प्रभु यीशु के वर्ड ऑफ गॉड में, ओके, वचन में वह ढूंढना है जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है। प्रभु हमें क्या बुलाता है, प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है, प्रभु हमने हमारे लिए ऑलरेडी क्या बना के रखा है, ये हमें प्रभु के वचन में ढूंढना है। और वो हमें इतने ऐसे बोलते रहना है अपने बारे में, खुद के बारे में बोलते रहना है जब तक हमारा जो सोच है वो वचन में ना ढल जाए। ओके, जैसे हम केक बनाते हैं, ओके, जब हम मोल्ड केक बनाते वक्त, ओके, हम लोग को ऐसा राउंड केक नहीं चाहिए, हम लोग को मफिन्स बनाना है, मफिन्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, जाके मोल्ड देखते हैं, जैसे डिजाइन का मोल्ड चाहिए। ओके, हम वो डिजाइन का मोल्ड लेके आते हैं। ओके, और फिर हम बाटर बनाते हैं। तो बाटर, जब हमारा बाटर बनाते हैं, तब वो बाटर कैसा होता है, वो वाटरी होता है, वो मतलब वो जिसमें भी डाले वो शेप वो लेता है। वैसे ही हमारा माइंड है। ओके, अ माइंड नीड्स इज लाइक द बैटर ऑफ केक। अब हम ये मोल्ड लेते हैं और वो मोल्ड में हम बाटर डालते हैं। हाँ। जब हम मोल्ड में बाटर डालते हैं तो वो बाटर क्या शेप लेता है? जो मोल्ड का शेप है, अगर वो मफिन का शेप है तो मफिन का लेगा। यस, तो वैसे वो मोल्ड फिर हम उठा के डाल देते हैं ओवन में। ओके, हाँ। और वो ओवन का हीट उसे जो परफेक्ट शेप देता है। तो जब वो केक बाहर लाते हैं हम, इट टेक्स द शेप ऑफ दैट मोल्ड। अब वो वाटरी नहीं है, बट वो सॉलिड हो गया है। हाँ। ओके, जैसे वो केक है, वैसे ही प्रभु का वचन है। जब हम दिन रात प्रभु के वचन में रहते हैं, प्रभु का वचन के बारे में सोचते हैं, प्रभु का वचन बोलते हैं अपनी जुबान से, तब हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो मोल्ड में ले लेता है। तो हम क्या चाहते हैं मालूम है, हम कैसा चाहते हैं कि जब हम नए आए हैं प्रभु यीशु में, तो हम चाहते हैं कि इंस्टेंट चेंज हो। मेरी सोच इंस्टेंटली
होली बन जाए, मेरा लाइफस्टाइल इंस्टेंटली होली बन जाए, पर वो वैसे नहीं होता, एक प्रोसेस में है, एक प्रोसेस में हम जाते हैं। ओके, वो प्रोसेस में हमारे साथ होली स्पिरिट होता है। जीसस ने हमें होली स्पिरिट दिया है जो बेस्ट हेल्पर है। ओके, वो हमें ट्रेन करता है, कोच करता है कि, पर वो हमें ट्रेन तभी करेगा जब हमें वचन पता है। ओके, बिकॉज होली स्पिरिट हमें वही बातें बताता है जो वचन में है। जब हमें वचन ही नहीं पता तो होली स्पिरिट हमें कैसे ट्रेन करेगा? तो इसलिए वचन का नॉलेज होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें वचन स्टडी करना है डे एंड नाइट एज मच एज पॉसिबल। वचन में कंप्लीटली रूटेड रहना है ताकि मेरा जो सोच है वो वचन के हिसाब से हो जाए। और जब मेरा सोच में परिवर्तन आता है, पहला चेंज आता है मेरे जुबा पे। जब मैं व्हेन आई स्टार्ट कॉलिंग, जब मैं अपने आप को क्या बुलाती हूँ, ओके, जब मैं बोलती हूँ, वो बोलना मेरे सोच को कैप्टिवेट करता है और उसको लाता है प्रभु यीशु के वचन में ओबीडियंस। तो जब मैं बोलती हूँ तब मेरा सोच बदलता है, और जब मेरा सोच बदलता है तब मेरी एक्शन में चेंजेस आता है। तो वो एक प्रोसेस है, डायरेक्टली एक्शन में चेंजेस नहीं आएगा। तो पहले सोच में चेंजेस आएगा। और सोच में बदलाव कैसे आएगा? जब हम अपना स्पीच, हमारा जो बोलना है, अपना जो बातें हमारे मुंह से निकलते हैं वो प्रभु के वचन में ये लाइन में आता है, वो प्रभु के वचन के से अनुसार मैच आता करता है। है। हाँ। मैच करता है। ओके, सिस्टर डायना, यू वांट टू से समथिंग? नो सिस्टर, यू कैरी ऑन। मैं समझ रही हूँ लाइक कि आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है प्रभु यीशु में, जब हम एक नई सृष्टि का अंग बनते हैं, तो पुरानी बातें, जो मतलब जो जीवन हमने पहले बिताया, जैसे हमारा जीवन पहले था, जैसे गाने हम सुनते थे, छोटी छोटी बातें, जैसे हम बोलते थे, जैसे हम चलते थे, जैसे हम बैठते थे, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, वो मजाक में भी हम लोग जो एक दूसरे को गाली देकर बोलते हैं, अभी वही वही बातें जब हम सुनते हैं तो हमें कितनी घिन आती है। उन लोगों पर नहीं जो बोलते हैं, जिनसे हम अभी सुनते हैं, लेकिन अपने आप पर इतनी घिन आती है कि इतनी गंदी जबान हमारी भी थी, है ना? तो लेकिन प्रभु यीशु की महिमा हो कि उनके वचन द्वारा हमें उसे छुटकारा मिल गया, है ना? जब हम अब प्रभु के वचन में हैं, तो हम उनका नया मतलब उनके अंग का भाग है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और पुरानी बातें जाती रही हैं, मतलब इट्स अ प्रोसेस। यानी कि वो ऐसा नहीं कि मतलब 3 घंटे का पिक्चर, है ना, कि अभी अभी देखा 3 घंटे, मतलब 3 घंटे के अंदर में सुपर हीरो भी बन गया, है ना, और सारी दुनिया को बचा लिया, और मतलब में हो गया, पिक्चर खत्म। ऐसा नहीं, इधर साफ साफ वचन में लिखा है पुरानी बातें जाती रही हैं। तो ये कैसे होता है? जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम जितना प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें रोज के रोज थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं। जैसे सिस्टर फ्लोरी और ब्रदर जॉनसन, जैसे एक वचन लेकर कभी कभी वो बार बार सुनते हैं, बार बार वही हमने भी करना है। अगर हमें कुछ समझ नहीं आया, उसको रिवाइंड करके फिर से सुनो, और पवित्र आत्मा को बोलो कि प्रभु, ये मुझे नहीं समझ आया, मुझे ये भेद समझाओ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड।
तो जो हमें प्रभु के वचन के अनुसार हमने अगर मांगा है तो वो हमें क्यों नहीं देंगे? वचन में तो यही लिखा है ना कि वचन के अनुसार जब हम प्रभु से विजडम मांगते हैं तो वो तो खुले दिल के हैं, वो तो मतलब आत्मा है, वो हमें देते हैं। तो पुरानी बातें जाती कैसी रहेंगी? जैसे ब्रदर जॉनसन ने एक बार या सिस्टर फ्लोरिन ने भी बताया था कि समझो एक बकेट है, एक बाल्टी है या एक मटका है, उसमें मतलब सब गंदा पानी है, और उसको जाने के लिए हम गंदा पानी फेंकेंगे तो भी उसके अंदर की गंदगी नहीं निकलेगी, है ना? तो उसके बजाय हम क्या करते हैं, नल ऑन कर देते हैं प्रभु के वचन का, और वो जैसे जैसे साफ पानी उस मटके में या बाल्टी में भरता जाएगा, बाल्टी भरने के बाद वो जो गंदा पानी है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा और साफ पानी से भर जाएगा। वैसे ही पवित्र आत्मा पुरानी बातों को ऐसे थोड़ा 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 निकाल कर हमें नया बना देता है। तो द ओल्ड हैज गॉन एंड द न्यू इज हियर, सो दैट इज अ न्यू आइडेंटिटी। हम नए बन गए, चकाचक एकदम। Yes. यस, तो जैसे जैसे हम आइडेंटिटी होता है, कई बार ऐसे लगता है कि जब हम वचन सुन रहे हैं, ओके, और वचन के साथ टाइम बिता रहे हैं, पर हमारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कि हमें कई बार ऐसा मन में आता है कि हमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ओके, पर वो भी एक झूठ है। ओके, द रीजन व्हाई इज, जब हम धूप में बैठते हैं, ओके, जब हम बीच पे जाते हैं और धूप में बैठते हैं या कहाँ पे भी धूप में बैठते हैं, ओके, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ मेरा स्किन काला नहीं हुआ है, हमारा स्किन टैन नहीं हुआ है। जब भी हम धूप में बैठते हैं तो हमारा स्किन टैन होना ही है। ऐसे नहीं होगा कि बाजू वाला का स्किन टैन होगा क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है और मैं बुरी हूँ, इसलिए मेरा स्किन वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। नहीं। हाँ बिल्कुल, सूरज की किरणें तो सब पे एक जैसी ही पड़ती हैं। तो बहुत बार ये होता है कि हम डिस्करेज हो जाते हैं कि हम सुन रहे हैं प्रभु का वचन, पर हमारी लाइफ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये पूरी तरह से झूठ है। वो काम कर रहा है अपने प्रोसेस में। ओके, तो हमने गिव अप नहीं करना चाहिए। ओके, हमने कंटिन्यू करना चाहिए वर्ड में, और जैसे ही हम वर्ड में कंटिन्यू करते हैं, होली स्पिरिट जो होता है वो हमें कभी कंडेम नहीं करता है, वो कभी हमें दोषी नहीं करार करता है, वो हमें कन्विक्ट करता है। ओके, तो जब भी हमें ऐसा लगता है गिल्टी फील कर रहे हैं, ये जो गिल्ट आ रहा है, वो गिल्ट जो है वो शैतान से आ रहा है, ये हमें जानना चाहिए। ये हमें पूरी तरह से पहचानना चाहिए कि ये जो गिल्ट है वो परमेश्वर से नहीं है। तो स्पिरिट ऑफ गिल्ट को हमें कास्ट आउट करके हमें कन्विक्ट होना है कि होली स्पिरिट हमें अच्छी तरह से, होली स्पिरिट जानता है कि हमें किस एरिया में कैसे बदलना है। ही इज सच अ गुड टीचर कि उसको पता है कि उसके स्टूडेंट को कैसे कन्विक्ट करना है। वो पूरी तरह इतना बेस्ट टीचर है कि वो कन्विक्ट करता ही है, पर हमें ओपन रहना चाहिए। हमने गिव अप नहीं करना चाहिए कि काम नहीं कर रहा है तो मैं गिव अप कर रही हूँ, ऐसा नहीं। हमने कंटिन्यू करना चाहिए वर्ड ऑफ गॉड में। बिल्कुल। सिस्टर मंजू, आपको कुछ बोलना है? नहीं सिस्टर, अभी आप लोग करिए। तो जब मैं प्रभु यीशु में आई, मेरा लाइफ जो पुराना था वो कंप्लीटली डिजास्टर में था, एंड इतना पूरी तरह से बर्बाद ही था मेरा लाइफ। और मेरा लाइफ ऐसा था कि मेरे हाथ में एक छोटा बेबी था, इसलिए मैं जी रही हूँ, नहीं तो मैं जी नहीं। पर जिस दिन मुझे प्रभु यीशु के वचन के साथ एनकाउंटर हुआ,
ओके, बिकॉज एवरीबडी सब चाहते हैं कि वो एनकाउंटर हो कि उनके बदन में करंट पास हो और उनको वो शिवरिंग फील हो और उनको कुछ अलग सा फील हो। पर मेरा एनकाउंटर जो था प्रभु यीशु के साथ, क्योंकि मेरा भी सोच वही था कि जब हमारे बदन में करंट पास होता है या कुछ ऐसा शेक होता है बॉडी में, और तब हमें प्रभु का प्रेजेंस फील होता है। पर आइला, मेरे को भी ऐसे ही मतलब मेरे को भी ऐसा ही मतलब दिमाग में था कि लोगों को चक्कर आता है, लोगों को ये होता है वो होता है, उन लोग को इसमें करंट आता है। किसने बोला, मेरे को छाती में ऐसा ठंडा लगा, तो मैंने बोला आइला मेरे को कभी होएगा। लेकिन मैं ना बहुत प्रीचर लोग ने ट्राई किया मेरे को गिराने के लिए कि मैं चक्कर आके गिर जाऊं, लेकिन हम तो ठहरे चट्टान। ओ मैं कभी वो चक्कर आके गिरा नहीं यार। और प्रेज गॉड, मतलब एनकाउंटर तो हो गया अपना मस्त एकदम प्रभु के वचन से। बट इट वॉज अकॉर्डिंग टू हिज वे, नॉट माई थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू हिज वे। वो जैसा मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग वो करंट लगे और वो चक्कर आए और वो ठंडा लगे आइस हो जाए। मतलब हम लोग ऐसा कॉकटेल ड्रिंक नहीं है ना कि ठंडा हो जाए करंट लगे। नहीं, पर प्रभु यीशु का वचन क्या बोलता है कि उनका प्रेजेंस हमारे साथ हर पल है। ओके, हाँ तो जब हर पल है, तो इवन अगर हम अभी बैठी हूँ मैं और मुझे ठंडा नहीं लग रहा या करंट नहीं आ रहा है, पर प्रभु यीशु मेरे साथ है, बिकॉज हाँ उनका वर्ड कहता है कि वो मेरे साथ है। तो उन्होंने जब उनके वर्ड में कह दिया कि वो मेरे साथ है, वो फुल एंड फाइनल, उसके आगे कुछ भी नहीं। करेक्ट। क्योंकि मेरा तो सबसे वर्स्ट ये था जब मैं नई टच हुई थी और आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत रिजॉइस करके डांस भी करती थी प्रेयर सर्विस में। और जब मैंने देखा कि कुछ लोग बैठ के रो रहे हैं, मेरे साथ जो भी आए हैं वो बैठ के रो रहे हैं और मेरे आंखों में आंसू नहीं आ रहे, उल्टा मैं हंस रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे में कुछ गलत है। और मैं सेम थिंग विद मी, आई यूज्ड टू लव टू डांस। तो अभी अच्छे से गाना बज रहा है और थोड़े लोग रो रहे हैं, थोड़े लोग गिर रहे हैं, थोड़े लोग मतलब ऐसा उन लोग का आईलिड ही नहीं नीचे हो रहा है, और मैं उधर नाच रही हूँ। तो इट लुक्स लाइक कि फिर बाद में मैंने बोला यार मतलब अपना अपना सबका अपना अपना एक मैंने एक रिट्रीट, नॉट रिट्रीट एग्जैक्टली, एक प्रेज एंड वर्शिप अटेंड किया था 2 साल पहले। इट वाज तो उसमें वो ब्रदर ने बोला था, वो पास्टर ने बोला था कि द होली स्पिरिट टचेस, जो होली स्पिरिट मतलब हमारे अंदर जो है वो जरूरी नहीं है कि सबको एक समान एक्सपीरियंस हो। कोई कोई मतलब लोग ऐसे हिलते हैं, कोई नाच उठते हैं, और कोई परफेक्टली स्टिल होता है। तो तभी मतलब मैं समझ गई कि ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब नाचे या सब रोए या सब को ठंडा लगे, गरम लगे, करंट लगे, ऐसा नहीं है। सबका अपना एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना जो पवित्र आत्मा है हमारे अंदर उंडेल दिया है ना, प्रभु का प्यार उंडेल दिया है पवित्र आत्मा से। लेकिन सबका एक्सपीरियंस एक सामान्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। और इनफैक्ट सिस्टर डायना, ऐसा हुआ था कि मेरे साथ एक बंदी थी जो मेरे रिट्रीट के लिए आई थी, तो वो मुझे बोल रही है कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि प्रभु यीशु मुझे बोल रहा है आई लव यू, तो और मुझे गिफ्ट दे रहा है, द गिफ्ट ऑफ हीलिंग। तो मैंने प्रभु यीशु को बोला कि प्रभु यीशु, अगर तुम मुझसे प्यार ये गिफ्ट दे रहे हो तो मेरा राइट हैंड को जोर से हिलाओ। तो मेरा राइट हैंड जोर से हिलने लगा। तो प्रभु यीशु मेरे से बहुत प्यार करता है। I really started feeling that God doesn't love me because
मुझे ये सब एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा है। तो मैंने सेकंड रिट्रीट में गई तो मेरा यही थॉट था कि प्रभु यीशु अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो आप मुझे बताओ ऐसा एक्सपीरियंस है। तो जब मुझे वो रिट्रीट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ओके, और आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि व्हेन आई वाज कमिंग आउट अ प्रीचर केम एंड सेड जीसस लव्स यू। व्हेन आई वाज प्रेइंग आई सॉ दैट God was telling me that Jesus loves you, but for me that word had no meaning, because I wanted that kind of experience, that shocking experience. Okay, but now the things has changed. When I was, जब मेरा परिचय प्रभु के वचन से हुआ, प्रभु के साथ जो प्रेजेंस में एक्सपीरियंस होने के लिए मुझे कोई किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु में कब जो प्रेजेंस है प्रभु का, जो हमारे साथ ऑल द टाइम है, एंड सडनली कभी एनॉइंटिंग फील होता है मुझे सडनली। हर जन का एक अलग अलग बोलते हैं ना, अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वो एक ब्यूटी है, वो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे एक्सपीरियंस एनॉइंटिंग कैसे फील होता है? एनॉइंटिंग फील होता है ओनली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। Only Holy Spirit speaks to me the word of God. प्रभु का वचन मेरे को बोलता है और तब मुझे वो एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए प्रभु का वचन का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रभु के वचन से हमें पता चलता है हमारा असली आइडेंटिटी क्या है प्रभु यीशु में। असली आइडेंटिटी हम कौन है। प्रभु यीशु का जो वचन है वो हमारा मिरर है। ओके, जैसे हम हमारा फेस है। ओके, क्या हमने अपना फेस को देखा है? नहीं, हमने अपना फेस को नहीं देखा है। हम हमारा फेस देखने के लिए कहाँ जाते हैं? आईना के सामने। आईने के सामने। यस, हम हमारा आईने में हम देखते हैं। हमारा चेहरा अपनी आंखों से हमने नहीं देखा है, पर आईना हमें बताता है कि हमारा चेहरा कैसा है। वैसे ही प्रभु यीशु का वचन हमें बताता है कि हमारे आत्मा में हम कौन हैं प्रभु यीशु में। हमारे आत्मा में हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए प्रभु यीशु में। हमारे आत्मा में हमारा क्या कर्तव्य है प्रभु यीशु। तो let's go to the next verse, sister. Yes, sister. Romans 12:1-2. सिस्टर मंजू आप पढ़ेंगी या आप हैं? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ शुरू से ना, 1 से 1 और 2 जी। इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है जिससे तुम्हें उसे चुकाना है। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके। सिस्टर मंजू नहीं सुनाई दे रहा हमको। अच्छा, नहीं अभी सेकंड वर्स से, हाँ सेकंड वर्स से फिर से पढ़ो। सेकंड वर्स। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि
अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उससे भाता है और जो संपूर्ण है। Praise God. Praise the Lord. Praise Okay, the तो Lord. इस वचन में हम देखते हैं कि होली स्पिरिट हमें बोलता है, इसलिए हे भाइयों, तो ये खाली भाइयों को बोल रहा है कि हमें भी बोल रहा है? हमें भी। Yes, तो अरे भाइयों और वचन बहनों, मतलब भाइयों और बहनों सबको ना। yes, वचन is for all of us, because in spirit there is no difference, there is आत्मा में कोई भेदभाव नहीं है। वचन बोलता है कि आत्मा में आदमी और औरत एक ही है। okay? तो इसलिए भाइयों, परमेश्वर की दया का समर्पण दिलाकर, दया का स्मरण दिलाकर मैं तुम्हें आग्रह करता हूँ, अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित करो। अब मेरा ये सवाल है कि बलिदान का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस। हाँ, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन। हाँ सॉरी, इधर लिखा है ना सैक्रिफाइस। बलिदान मतलब मेरा समझ ये है कि जो हमें सबसे अजीज है उसको हम छोड़कर वो करें जो इतना आसानी से नहीं होता। जैसे एक मतलब क्या बोलते हैं यार, सैक्रिफाइस जो मतलब मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको मतलब मैं इतनी आसानी से छोड़ू नहीं या किसी मतलब पकड़े रहूं उसको, या दैट इज द सैक्रिफाइस। जैसे एक एंगल हो सकता है जो मैं बोल सकती हूँ, पीपल sacrifice certain things during Lent, कि वो मतलब लाइक अभी के इसमें मॉडर्न इसमें एब्स्टिनेंस भी बोलते हैं, बट दैट इज नॉट sacrifice really, maybe, but it can be compared to that कि एक कुछ सैक्रिफाइस कर लिया उन्होंने, दो बार मील के बजाय एक मील खा लिया, और वो टाइम वो प्रभु के वचन में बिताते हैं, अपना टाइम सैक्रिफाइस करते हैं, जो पूरा साल उन लोग नहीं बैठेगा 2 मिनट, लेकिन लेंट के टाइम पे उन लोग को टाइम मिल जाता है वैसा। अब मुझे वो याद आता है सैक्रिफाइस का, जब बोलते हैं ब्रदर जॉनसन का एग्जाम्पल, वो बोलते हैं सैक्रिफाइस होता है तंदूरी चिकन के जैसा। मैंने भी सुना है। ओके, सो जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तब तंदूरी चिकन बनता है, सब नॉनवेज खाते हैं कि नहीं खाते? मैं खाती हूँ, लेकिन ठीक है यार, चिकन मेरे को इतना पसंद नहीं है। सिस्टर मंजू खाते चिकन? हाँ, तो जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं और जब तंदूरी चिकन बनता है तब हमें खुशबू आती है तंदूरी चिकन के लिए, तंदूरी चिकन का। अरे वो तो रेस्टोरेंट में जाने का क्या जरूरत है, वो तो 1 किलोमीटर दूर से आते स्मेल उसका। तो वो खुशबू किसके लिए होता है? वो चिकन के लिए होता है कि हमारे लिए होता है? हाँ, हम लोग के लिए ना। हाँ, तो और चिकन का क्या स्टेट रहता है?
अरे यार पूछो नहीं यार, बेचारे को सैक्रिफाइस कर दिया ऑलरेडी। उसको कोयले पे रखा जाता है, गरम गरम कोयले पे, मसाला लगा के। हाँ तंदूर, तंदूर में। हाँ तंदूर पे, तंदूर में, बट ओके। तो जो चिकन होता है वो दूसरों के लिए होता है, पर जब उसका खुशबू छोड़ता है तो वो भी दूसरे के लिए होता है। अब तंदूरी चिकन बन गया है, ओके। अब वो तंदूरी चिकन कट करके सबको दिया जाता है, तो वो चिकन के लिए दिया जाता है कि दूसरों के लिए? दूसरों दूसरों के लिए, जो बिल भरेगा उसके लिए। और वो चिकन जब खाते हुए कैसे मजा आता है? वो चिकन को मजा आता है कि दूसरों को मजा आता है? तो और मजा जिसको आता खाते है, हैं जो अभी मजा सब आता लोग, है। अभी आपका ये इसका टीचिंग के बाद सब लोग ऑर्डर करने वाले हैं zomato.com पे। ओके, सो जो तंदूरी चिकन है वो, उसका लाइफ खुद के लिए नहीं होता, बट जब वो जो दूसरा इंसान वो तंदूरी चिकन खाता है तब उसको जो फीलिंग होता है वो वाव फीलिंग होता है, उसका खुशबू वाव फीलिंग होता है। वैसे ही हमारा लाइफ एक सैक्रिफाइस है, ओके। वो हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, ओके। तो जब हम होते हैं किसी, लाइक फॉर एग्जांपल हम जॉब में है, हम ऑफिस में है और हमें कोई परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। अब हम क्या है? तंदूरी चिकन, ओके। तो हाँ वो परेशान कर रहा है, पर हम उसको क्या दे रहे हैं बदले में? अच्छी खुशबू, अच्छा हाँ टेस्ट, हम्म, अच्छा एहसास, ओके। सो आवर हाँ लाइफ इज अ सैक्रिफाइस। हमारी जो लाइफ है वो एक जीवित सैक्रिफाइस है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, ओके। जो सैक्रिफाइस करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? एब्सटेन करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। वो सैक्रिफाइस खुद के लिए है, पर जो रियल सैक्रिफाइस है वो है दूसरों के लिए। और ये वचन कहता है वही सच्चा, दैट इज द ट्रू वर्शिप, ओके। प्रेज जब गॉड। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को की बलि चढ़ा दो, तब इब्राहिम ने क्या, जब तीसरा दिन आया और उसने माउंट को देखा और लेके जा रहा था अपने बेटे को बलि देने के लिए, तब उसने जो उसके साथ है वो लोगों को कहा कि तुम यहाँ पे रहो, मैं जाके मेरे बेटे के साथ वर्शिप करके आता हूँ। तो वर्शिप करना क्या है? वर्शिप वो है जो हम प्रभु यीशु परमेश्वर का इच्छा अपनी लाइफ में करते हैं। तो हम वो नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा और तुम्हारा, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक कपल में झगड़ा हो गया, ओके, लाइक ओके, नाउ द लॉर्ड सेज गो एंड से सॉरी, पर तुम्हारा गलती नहीं है। द लॉर्ड इज सेइंग गो एंड से सॉरी। अब मन में क्या आ रहा है? सैक्रिफाइस आ रहा है कि ये मैं बेचारा क्यों चाह रहा बोलूं? है कि मेरी गलती, हाँ मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों बोलूं? हाँ सबसे पहले तो मतलब वो, पहले तो वो ही आता था, मैं क्यों बोलूं। मैं क्यों बोलूं? पर नाउ जब हम जानते हैं प्रभु का वचन, तो हम जानते हैं कि ये जो हम करते हैं वो जो सैक्रिफाइस है प्रभु के लिए, और ये सैक्रिफाइस प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। दैट इज द ट्रू वर्शिप, that is the true worship. Worship is not falling on the road, on the ground and lifting your hands up and crying and all that. Worship वो है जो हम परमेश्वर की इच्छा करें, ना कि हमारी इच्छा, हमारी लाइफ। प्रेज गॉड। आपको कुछ बोलना है सिस्टर डायना? नहीं सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए, है हम लोग के पास टाइम। ओके, फिर आगे कहता है और अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करो।
दुनिया की रीत क्या है। ये एक साल में, ये जो लास्ट ईयर है, इसमें हम लोग को दुनिया की रीत बहुत अच्छे से दिखाई दी कोरोना वायरस के रूप में। हाँ, सो इतना फियर, न्यूज चैनल, ये वो लोग कहते हैं इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। ओके, पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि हम प्रभु के शरण स्थान में हैं। हम प्रभु हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा परमेश्वर है और हम उस पे विश्वास करते हैं। तो हमारा चॉइस है कि हम चूज करें कि हम दुनिया की रीति पे चले या जो प्रभु का वचन कहता है उसकी रीति में चले। तो अगर परमेश्वर की रीति में हम चल रहे हैं तो उसके हिसाब से ये कोरोना वायरस ना ही हमें छू भी नहीं सकता, पर वो हमसे डर कर हमसे 10 किलोमीटर दूर है। हाँ, प्रेज गॉड। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड हम प्रभु यीशु की बॉडी है। वी आर द बॉडीज ऑफ क्राइस्ट। एंड प्रभु यीशु की जो आत्मा हम में है, जो इस ईवल, सिकनेस, बीमारी या हर एक बुरी चीजों से कहीं बढ़कर है। He is more powerful than any other things in the world. तो ये चीज है कि हमारा चॉइस है। परमेश्वर ने हमें चूज करने दिया है कि हम चूज करते हैं कि हम किस में विश्वास करते। हम विश्वास करते हैं कि ये सब चीजों को हमारे ऊपर पावर है या हम उस पर पावरफुल है। We are more powerful than them. Yes, sister. अपने आप को बदल डालो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। ओके, तो फिर से कहता है अब और आगे इस दुनिया की रीत पर मत चलो, ओके, बल्कि अपने मनों को नया करो। रिन्यू योर माइंड, चेंज योर थिंकिंग। ओके, कैसे करना है माइंड को रिन्यू? माइंड को रिन्यू करना है प्रभु के वचन से। ओके, क्योंकि दुनिया कहता है कि हम पापी हैं, हमने सब बुरा काम किया है, हम गलत है, हमारा पिछला लाइफ कितना बुरा है। दुनिया का स्टैंडर्ड कैसा है? लोगों को जज करने के लिए, हमें जज करने के लिए। हाँ, तो वो स्टैंडर्ड से नहीं हमें रहना है, हमें अपने मनों को रिन्यू करना है। तो मनों को रिन्यू करना है प्रभु के वचन के द्वारा, जो कहता है कि हमें प्रभु ने हर एक कर्स से रिडीम किया है। प्रभु ने हमें हर एक सिन से रिडीम किया है। प्रभु ने हमें हर एक सिकनेस से रिडीम किया है। और अब उतना ही नहीं, रिडेम्पशन ही नहीं दिया है, ना ही उन्होंने हमारे सिंस को माफ कर दिया है, पर उन्होंने हमें और कुछ भी दिया है। प्रभु ने हमें हर एक चीज दिया है जो हमारे लाइफ के लिए जरूरत, हर एक चीज दे दिया है। हमें वो रिसीव करना है अपना माइंड को। हेलो, हाँ सिस्टर। हमें वो रिसीव कैसे करना है? रिसेप्शन हमारे साइड पे है। ओके, हमने अपना बत्ती बंद करके रखा, वाईफाई है हमारे घर पे। ओके, हाँ, ओके, पर हमने वाईफाई का बत्ती बंद करके रखा है, घर का स्विच बंद करके रखा है, और वाईफाई का जो मेन सर्वर है वहां से वो कनेक्शन दे रहा है। ओके, हाँ, और हमने अपने इधर से बटन बंद करके रखा है, तो हमें हमारा फोन पे या लैपटॉप पे इंटरनेट चलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम सर्वर को कॉल करते हैं कि सर्वर वाले को कि हाँ, भाई साहब प्लीज जरा वाईफाई टेलीफोन चालू कर दो निगम ना। टेलीफोन निगम को, महानगर टेलीफोन निगम, उन लोगों को फोन करके बोलते हैं हम लोग। हाँ, सही है।
हाँ, तो वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ से चेक करेगा, बोले यस सब ठीक है, आप चेक करो, तो फिर वो अपनी ओर से 2-3 आदमियों को हमारे घर पे भेजते चेक करने के लिए। पहले आप और वो चेक करते देखते हैं कि हमारे वाईफाई का बटन ही बंद नीचे से, अभी उनका क्या रिएक्शन रहेगा? उन लोग एक चमाट देंगे, टाइम खोटी किया और इतना बोलेगा 1000 रुपया भरो God has चार्जेस. yes. So even we have to pay the Yeah, of charges. course. Okay. Say God has given us everything. भगवान ने हमें सब कुछ दिया है हमारे लाइफ के लिए, हमने बंद कर लिया है, तो वो हमें चालू करना है। वो हम कैसे चालू करें? जो वचन है उस बोलते रहे। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम हमारी माइंड को रिन्यू कर रहे हैं। जब हमारे घर पे बेसन में चोकअप होता है, हाँ, जब चोकअप हाँ, बेसिन बोले तो वो वॉश बेसिन है ना? हाँ, डालेगा तो वो पाइप एकदम मस्त हो जाता है। पाउडर डालने से पहले आपके पास घर हाँ, वो तो वो पंप होता है ना हाँ, हमारे घर पे, तो हम बेसन में चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, पहले पंप से प्रेशर हाँ, लगाते हैं। ओके, तो प्रेशर इतना लगाते हैं कि वो चोकअप क्लियर हो जाता है, और जब वो चोकअप क्लियर हो जाता है, तब हम जब नल चालू करते हैं तो बेसन से पानी कैसे जाता है? बूंद बूंद से नहीं, जब when you're using that pump, no, once the pump is used and the choke-up is cleared, okay, तो पानी कैसे जाएगा? no, it will go with full force, no? Okay, so it will go with full force provided हमारा नल चालू है full force में। हाँ, of course. अगर हमने नल चालू किया है बूंद बूंद में, ओके, और हम एक्सपेक्ट करते हैं full faith should work in full force, it will not work. We have to open our tap to the full so that the faith can flow with full force. So when we are opening our mouth and speaking the word of God, जो प्रभु का वचन हमारे बारे में कहता है, प्रभु का वचन हमारे लिए कहता है, तब क्या होता है कि जो फेथ है, वो जो ब्लॉकेज है ऑफ अनबिलीफ जो इतने सालों से हमारे जिंदगी में हमने बनाया हुआ है, वो ब्लॉकेज क्लियर होता है। और तब जब फेथ वर्क करता है फुल फोर्स में। पर क्या होता है कि बहुत सारे टाइम जब पंप मारते हैं ना, तब डेविल बोलता है कि काम नहीं कर रहा है यार, प्लीज ये काम नहीं कर रहा है, पंप मत मार, कुछ काम नहीं है, इतना सा पंप क्या काम आएगा तेरा नल को साफ करने के लिए, नल ही चेंज कर दे, पाइप ही चेंज कर दे, काम नहीं कर रहा है। और वो टाइम पे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। पर जब हम बोलते हैं प्रभु का वचन जुबान से, तब हमें ये एहसास होना चाहिए कि जिसने वो वचन दिया है हमें, वो एक विश्वसनीय प्रभु है। हाँ, वो एक विश्वसनीय प्रभु है, और वो जो बोलता है वो करता है। और आज हम जहाँ पे भी हैं, हमारा लाइफ जो पहले था वो कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन के तरफ था, पर बिकॉज प्रभु विश्वसनीय है, उसने आज हमें उसके वचन में लाया है। तो वो जो उसने हमें उसके वचन में लाया है, वो क्यों नहीं वो कार्य करेगा हमारे लाइफ में जो हम कन्फेस कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, होल्ड फास्ट टू योर प्रोफेशन ऑफ फेथ विदाउट वेवरिंग, बिकॉज द वन हु इज प्रॉमिस्ड, जिसने जो वचन दिया है वो फेथफुल है, वो विश्वसनीय है। तो हमने डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, हमें कंटिन्यू करना चाहिए, वचन को बोलते रहो दिन रात, जितना भी मौका मिले, नहाते खाते पीते बोलते रहना चाहिए। और जब हम बोलते हैं, जो विश्वसनीय प्रभु है वो हमारे लाइफ में कार्य फुल फोर्स में करता है। क्योंकि हम जब बोलते हैं, हम हमारे माइंड को मेक अ माइंड एग्री, हमारा माइंड रिन्यू होता है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमको बोलना, तो एक ही बार बोलना काफी नहीं है क्या? बोलना काफी नहीं है, क्योंकि हम माइंड को ओके। तो कैसे होता है कि इनिशियल जब हम वर्ड ऑफ गॉड में रहते हैं, इनिशियल वर्ड ऑफ गॉड में साउंड नहीं रहता है। हाँ, इनिशियली हम लोगों को हम अगर जितना बोलते हैं
वो चेंज होता रहता है। यस यस एग्जैक्टली, हमारा माइंड रिन्यू होता है, और जब हमारा माइंड रिन्यू हो वर्क्स विद फुल फोर्स। ओके, नहीं सिस्टर, आप समझ रहा है मैं जो बोल रही हाँ हूँ? हाँ ऑफ कोर्स सिस्टर, मतलब सिस्टर एग्जांपल्स, प्रेज गॉड। तो अच्छा रिवीजन हो रहा है हमारा। बहुत अच्छा है। तो जब हम हमारा माइंड रिन्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, ओके, तब आगे क्या बात की, तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। हमें पता चलता है कि जो परमेश्वर है वो हमारे लिए क्या चाहता है। वो भला है, हमें प्यार करता है एवरलास्टिंग लव से। हाँ वो कहता है कि अगर एक माँ भी अपने बच्चों को भूल जाए, या एक गर्भवती औरत अपने पेट के बच्चे को भी भूल जाए, पर मैं तुझे कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने अपने एकलौते बेटे को भी दे दिया तुम्हारे लिए, मैंने अपना सब कुछ दे दिया। तो मैं जो तुम मांग रहे हो वो क्यों नहीं दे रहा हूँ? वो दे रहे हैं, हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम रिसीव नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। तब हमें पता चलेगा। यस सिस्टर है ना? नहीं मैं बोल रही थी यहाँ पे ना कि हमें पता चल जाएगा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है, और जो संपूर्ण है, यानी कि व्हाट इज उत्तम, यानी कि ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी कि एकदम टॉप नॉच है ना। यस जैसे मतलब गुची, जिमी चू, वो सब कुछ नहीं है ना उसके सामने। यस शनेल वनेल, हाँ, ये सब दुनियावी जो ब्रांडेड है ना, हमारे लिए इस दुनिया की बातें अभी मतलब मायने नहीं रखती कि कैसे कौन से ब्रांड के कपड़े हमने पहने, क्योंकि पिता परमेश्वर जो हमें हमारे लिए चाहते हैं वो है उत्तम, जो उन्हें भाता है। तो उन्हें क्या भाता है, उनको क्या चाहिए हमसे, which is his pleasing and perfect will। तो उन जो उन्हें क्या भाता है, उनका विल क्या है हमारे लिए, वो क्या चाहते ये हैं इस पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, मेरा ही घर का है। मेरा हस्बैंड है ना, जब सुबह उठता है ना, स्पेशली वीकेंड्स के दिन, तो सबसे पहले उनका सोच ये रहता है कि मैं मेरे बेटे के लिए क्या करूँ, आज मैं मेरे बेटे को क्या दूं, आज मैं मेरे बेटे के लिए ये करूंगा। और मेरे को कभी कभी मेरे हस्बैंड को बोला जाता है कि बस हो गया, इतना भी मत रखे। अभी वो जो है वो अर्थली फादर है। ओके, वो अर्थली फादर है, और वो उसके बेटे वो इतना ही कर सकता है, उतना ही कर सकता है, उसके जितना बैंक बैलेंस है उतना ही कर सकता है। पर आईटी गॉड है, ही इज एवरीथिंग, सब कुछ उनका है। और वो हमारे लिए सोचता है, हमें देना चाहता है सबसे उत्तम, अति उत्तम, जो उसे भाता है, यानी जो उनको भाता है। व्हाट डज ही लाइक व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। उनके वचन अनुसार अपने भाइयों से प्यार करें, टू लव एवरीवन, treat each other equally, that's his perfect will, no? Yes. Walk as per, do things, everything as भाता है। His will, yes, his will is that everybody is his commandment, and his will for us, उसका जो इच्छा हमारे लिए है वो उसके वचन में है। वो हमें वचन से ढूंढना है, प्रभु आपका मेरे लिए इच्छा क्या है। ओके, कहता है, Psalms 1 कहता है कि blessed are the ones who study the word of God। झाड़ के जैसा है, जो they are like trees, they are planted by the rivers, fruitful and full of sap। तो जब हम प्रभु के वचन में अपने आप को पूरी तरह से डाल देते हैं, पूरी तरह से अपने आप को डाल देते हैं, तब हमारा जो जिंदगी है वो बन जाता है प्रभु की इच्छा के हिसाब से। प्रभु गॉड ऑलवेज हैज विल फॉर अस, गुड विल फॉर अस। इसलिए जेरेमाया 29:11 कहता है,
I alone know the plans I have for you. मैं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं. Plans for your welfare and not for your disaster. So दुनिया क्या बोलता है कि तुम्हारा लाइफ अभी बर्बाद, पर प्रभु बोलता है कि नहीं, मैं फिर भी मेरा योजना है तुम्हारे लिए, योजना है तुम्हारे अच्छे के लिए. मैं सोचता हूँ तेरे बारे में, मैं योजनाएं करता हूँ तेरे बारे में. I plan for you. I have already kept a plan for you. तुम्हारे अच्छे के लिए. तुम विश्वास करते हो क्या कि मेरा तुम्हारे लिए अच्छे प्लान हो, या तुम विश्वास करते हो ये स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से? वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे माइंड को रिन्यू करने के लिए प्रभु के वचन के हिसाब से, और तब हमें पता चलेगा कि प्रभु का क्या विल है. He always wants good for us. Always wants good for us. He has made us. हम जब वचन में आए, उन्होंने हमें नया क्रिएशन बना दिया है. तो अब ये नया क्रिएशन का क्या, प्रभु का क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे लिए? उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि वो होली है, तो वैसे ही हम भी होली बने. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अंबानी चाहेगा कि अंबानी का बच्चा उसका बिजनेस चलाए, राइट? कि वो चाहेगा कि उसका बच्चा कोई और इधर और ये करे. हाँ, नहीं ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि उनका बिजनेस उनका बेटा चलाए, उनके बच्चे चलाएं. तो प्रभु का इच्छा यही है कि उनका जो बिजनेस है वो होली है, वो पवित्र है, और हम भी पवित्र बने. और हम कैसे हम पवित्र स्पिरिट में ऑलरेडी बन गए हैं, पर अब हम उन प्रभु का वो वचन लेके हमारे माइंड को रिन्यू करें और कहे कि हम भी पवित्र हैं. प्रभु तुम्हारी कृपा है आपकी आत्मा से, बिकॉज आपका वचन कहता है कि आपने आपका प्यार हमारे हृदय में डाल दिया है वंस एंड फॉर. उससे नहीं, पर आपके वचन पे मैं विश्वास करती हूँ. और जब हम हमारा माइंड को हमारे एक्शन चेंज करें, एक्शन डजंट चेंज, फर्स्ट चेंज इज आवर थिंकिंग, आवर माइंड. एक प्रभु के वचन को एग्री करने को, ना कि हमारे सेंसेस को एग्री करने को, ना कि हमारे, तब हमारा एक्शंस राइट होता है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. यस, आमेन. समझ में आया? जी. You want to share anything? No, sister. I think we are good. So far, so good. Okay. So, sister, I have to go Yeah, now. sister Manju, आप closing phrase. Anybody wants to share anything? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? या मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सिस्टर शैरन ने बहुत उदाहरण देके और बहुत अच्छा लगा मुझे. Thanks be to God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Yes, sister. मंजू की आवाज सुनने के लिए मैं कितना टाइम से रुकी थी क्लोजिंग प्रेस के लिए. इधर पर शोर हो रहा था इधर, इसलिए मैं म्यूट कर दी थी अपना. Yes, clear. आवाज आ रही है मेरी? आपकी मत. ठीक है सिस्टर, मैं शुरू करती हूँ. बोलिए. धन्यवाद प्रभु यीशु, आप महान प्रेम देता कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं प्रभु, और यह महान प्रेम हमारे कभी कम नहीं होता. और आप इस महान प्रेम से जो आपने हमारे अंदर डाला है, आप हमसे जो ये प्यार करते परमेश्वर प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और जो सिस्टर शैरन ने हमें सिखाया, रिवीजन कर रहा है, याद दिलाए, जो सिस्टर फ्लोरी ने हमें सिखाया था प्रभु, कि हम हमारी पहचान इस दुनिया में, इस जीवन में क्या है, कि हम एक आत्मा है, आपके पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. तो हम एक आत्मा है प्रभु, जो आपने हमें नया बनाया. आपके वचन से हम कैसे हमारी जो सोच है उसे बदलें, और वचन द्वारा आप हमें कैसे, हमें अपने राज्य का नए नए भेद सिखाते हैं. उसके लिए शुक्रिया प्रभु. पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आप हर वक्त हमको सिखाते हैं, सिखलाते हैं जो आपके राज्य के भेद हैं,
ताकि हम वो समझें और औरों को भी समझाएं। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father, for blessing us with this time together for this evening that you brought us together, Lord. I thank you and praise you, Abba Father, for blessing us with every spiritual blessing according to your riches and glory by Christ Jesus. I thank you and praise you, Lord, for this, for strengthening us with your word. आप हमारे गढ़ हैं, आप हमारी शक्ति हैं, आपने हमें शिफा दे दी है और ये ईमान से हम चलते हैं कि प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम ये मानते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Amen, amen, and amen. 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 Thank you, sister. God Thank bless you. you. Thanks be to God and और have a anointed sister? evening. Yes. सिस्टर शारन, सिस्टर डायना, जी Yes. जी वो मैं गांव में हूं ना, तो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं वो व्हाट्सएप में मैं वॉइस मैसेज करके अपना टेस्टिमनी दूं। मैं बहुत सारा मेरे पास अरे टेस्टिमनी आप है, वो कट जाता है हाँ, बीच में ना, कोई तो बात वो नहीं। हो जाता है। तो व्हाट्सएप पे ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम सिस्टर। And in fact, हम लोग रुके हुए हैं आपकी टेस्टिमनी के लिए कि भेजो। जी Praise the Lord. तो बोलूं या कट होगा तो फिर रिपीट हाँ, करना चलेगा, बोलो पड़ेगा? ना। अगर कट हो रहा है तो फिर हम लोग कैंसिल करते हैं। आप I think it is she has the internet problem, never mind. so we अरे हाँ, यस कट हो रहा है सिस्टर, तो आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है प्रेज सिस्टर। द God लॉर्ड, bless you. गॉड Have an ब्लेस यू, anointing night with the Lord. God गुड bless नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड। You can stop the recording now. Sister? Sister, class is over? Okay. Can I Yes, stop sister, you recording, may sister? stop